So we'll go ahead with next topic that is prism theory. तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट completely देखा था. So now we'll move ahead with next topic that is prism theory. So I will start with very quick introduction of what is a prism. Of course all of you now know what is a prism. So prism consists of a transparent material which has three rectangular and two triangular surfaces. So prism consists of, remember, prism consists of a transparent material, transparent medium which has three rectangular and two triangular surfaces. तो तीन rectangular और दो triangular surfaces है. तो for example, as you see, only front and back are triangle and other remaining three surfaces are rectangle. It is bounded on two sides by two refracting surfaces. तो ये जो दो surfaces को क्या बोलते हो? Refracting. तो ये surface number 1 और surface number 2. Surface 1 and 2 are called as refracting surfaces. So these are known as refracting surfaces. Okay. Then the line along which the two refracting surfaces meet, मतलब ये line, इसको बोलते हैं refracting edge. क्या बोलते हैं इसको? Refracting edge. Then if you remember, the angle between the two refracting surfaces is called as angle of prism या फिर prism angle denote करते हैं normally हम लोग A से. Refracting angle of prism angle ये सब सेम ही बात है. तो angle between the two refracting surfaces is called as prism angle और refracting angle of prism. ये जो refracting edge है इसको जो opposite side होता है उसको बोलते हैं base of prism. क्या बोलते हैं उसको? Base of prism. Good. Then if I cut a section of the prism perpendicular to the refracting edge, you see a triangle and this triangle is known as principal section. तो ये हो गया principal section. अब इसके बाद से मैं सिर्फ principal section ही draw करने वाला हूँ, बाकी मैं कुछ draw नहीं करने वाला हूँ. I will be drawing only principal section. So there are few things which are important which you must know. Refracting surfaces, एक surface से light आएगा दूसरे से बाहर जाएगा, तो one surface पे light incident होगा दूसरे से emerge होगा. Then the angle between the two surfaces is called as prism angle या फिर refracting angle. The line along with the two refracting surfaces meet is called as refracting edge. A side opposite to refracting edge is called as base of prism, and a section of the prism which is perpendicular to refracting edge is called as principal section. अब हमने सबसे पहले prism formula derive किया था, अगर आपको याद होगा theory classes में. तो I will first derive prism formula. तो टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे. तो वी हैव अ प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. तो वी हैव दिस प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म ABC. गुड. द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम साइड AB. इस इंसिडेंट लाइट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस से PQ. देन वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. इस नॉर्मल को कुछ नाम दे दो, सम नेम, MD, ND, वट वी वांट टू कॉल सम नेम. गुड. द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. और बाय द वे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ1 बोल दूंगा, वो 1 बन जाएगा वैसे भी बिकॉज सराउंडिंग इज एयर. और जो प्रिज्म है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल दूंगा एंड विच शुड बी कॉल्ड एज म्यू लेटर ऑन. तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. करेक्ट, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये जो तुम्हारा रे है QR, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एट द सरफेस AC सरफेस पे वापस से इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट द सरफेस AC. Let's give it some name N. Then यहाँ से light will go out. So light will go out मतलब light will emerge. RS is the emergent ray. हम अगर incident direction को थोड़ा extend कर ले और emergent direction को भी अगर थोड़ा सा extend कर ले, तो जो incident direction और emergent direction में जो angle बनता है इसको बोलते हैं angle of deviation. बेसिकली टेल्स यू लाइट का डेविएशन कितना हुआ ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल एमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल होता है, दैट टेल्स यू हाउ मच लाइट इज डेविएटेड. तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन. देन दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस.
R1. This is refraction angle at second surface R2. This is known as angle of emergence E. अब ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा, वर्टिकली अपोजिट. उसमें से एक पार्ट R1 था तो ये बन जाएगा I माइनस R1. तो I माइनस R1. अब क्योंकि ये एंगल E है तो ये भी क्या आया E, और उसमें से एक पार्ट है R2 तो ये हो गया E माइनस R2. गुड. तो दिस इज ऑल व्हाट यू रिक्वायर टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला. पहले तो डायग्राम पता होना चाहिए अच्छे से. देन इफ यू रिमेंबर मैंने आपको इसके डेरिवेशंस के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक दिए थे. कैसे याद रखते हैं? याद कैसे रखते हैं? अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल. अपर ट्राइंगल मतलब QER ट्राइंगल. यहाँ पे क्या लगाओगे? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक ही बात है. तो फ्रॉम अपर ट्राइंगल मतलब QER. तो फ्रॉम ट्राइंगल QER, डेल्टा ये एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. रिमोट इंटीरियर मतलब I माइनस R1 और E माइनस R2. तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस कॉमन निकाल लिया R1 प्लस R2. इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद मैंने बोला था लोअर ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? QDR. तो फ्रॉम ट्राइंगल QDR, sum of all the angles is 180. तो R1 plus R2 plus D is 180. R1 plus R2 plus D equals to 180. मतलब R1 plus R2 is 180 minus D, इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद क्वाड्रिलैटरल. कौन सा क्वाड्रिलैटरल? QARD. तो फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल QARD, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मतलब A और D का सम होता है 180. तो A इक्वल्स टू 180 माइनस D. इक्वेशन 3. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 था R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस D, और ये है A इक्वल्स टू 180 माइनस D मतलब R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A. इक्वेशन 4. और ये इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 1 अगर याद होगा, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4, from equation number 1 and 4, what do you get? अरे जल्दी बताओ. डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A. तो A शिफ्ट कर दिया तो A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E. इक्वेशन नंबर 5. और मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन नंबर 5 तक ये जनरल इक्वेशन है विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन. कोई ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है. दिस आर जनरल फॉर्मूलाज. उसमें से भी सबसे ज़्यादा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 तुम्हें काम में आएगा. R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A एंड A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस. इसके बाद हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन की बात की थी. मतलब इसके बाद जितने भी फॉर्मूला में डिराइव करने वाला हो, दे विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन बताता हूँ. तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मेजर करते जाएंगे. दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल डेटा. तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है. दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम थ्योरी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे और हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करेंगे. तो इट इज़ सीन दैट विद इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, देन इट रीचेज अ मिनिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन. तो ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू मिनिमम है, उसको हम लोग डेल्टा M से डिनोट कर देते हैं. नाउ रिमेंबर ये डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, ये एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है. तो अगर थोड़ा सा डायग्राम से समझोगे तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली
यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लाइट को इंसिडेंट करवाना। तो यू नीड टू रिमेंबर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से स्टार्ट किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, सो ऑन सो फोर्थ। और हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वी आर मेजरिंग एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमको दो कॉलम मिल गए, एक में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक में एंगल ऑफ डेविएशन है। उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और ग्राफ ऐसा दिखता है। विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस देन रीचेज अ मिनिमम वैल्यू एंड फॉर फर्दर इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन की, इस पे कुछ स्पेशल चीज़ें होती है। आई और ई की वैल्यू हो जाती है सेम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस आर सेम। तो याद रखना एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम तो आई और ई की वैल्यू सेम हो जाती है, R1 और R2 की वैल्यू भी सेम हो जाती है। तो यहाँ से तुमको मिल जाता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R प्लस R, ऑफकोर्स दैट इज 2R। ये A है, आई नो, आई रिमेंबर दिस इज A। R1 प्लस R2 इज A ना, हाँ। तो R प्लस R इक्वल्स टू A, तो 2R इक्वल्स टू A, तो R इक्वल्स टू A/2। ये से मिनिमम डेविएशन में एप्लीकेबल है। और एक चीज़ होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे था QR, ये बेस को बन जाता है पैरेलल। गुड। और अब R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A से तो ये मिल गया, A प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E, A प्लस डेल्टा M, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, I प्लस I। तो यू हैव A प्लस डेल्टा M इक्वल्स टू 2I। तो I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। तो ये इक्वेशन भी रिमेंबर मिनिमम डेविएशन पे ही यूज़ होता है, कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने बोला था कोई भी एक सरफेस पे, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे या ए बी पे या ए सी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करो स्नेल्स लॉ एट ए बी, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन R1। μ1 की वैल्यू 1, आई की वैल्यू A प्लस डेल्टा एम बाई 2, μ2 इज म्यू, साइन ऑफ R1 कितना आया A/2, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू R थी और R की वैल्यू क्या आई A/2। तो यहाँ से तुमको मिल गया म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ओनली अंडर मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन को सिमेट्रिक पासिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस सेम है। तो जो रे है वो सिमेट्रिकली पास हो गया प्रिज्म से, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक पासिंग। तो ये आपको स्टेट बोर्ड में था। अब आपको कुछ स्टेट बोर्ड में नहीं भी था, दैट इज मैक्सिमम डेविएशन। तो मैं अभी मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन को करता हूँ कंपेयर, सो दैट यू कैन नाउ रिमेंबर। हम मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज़ किया होगा तो क्या यूज़ करना, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, और मैक्सिमम के लिए क्या करना। तो मिनिमम डेविएशन एंड मैक्सिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए तुमको डायग्राम तो भी अच्छे से पता है। यू नो दैट इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of emergence are equal, R1 R2 both are equal, QR is refracted rays parallel to the base of prism। तो लाइट ऐसा आया, वो ऐसा गया और फिर यहाँ से बाहर गया। ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वहाँ एंगल ऑफ एमर्जेंस होगा, अंदर R1 में ना R2 है। गुड। और इस केस में एज आई टोल्ड यू, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2, दैट इज व्हाट यू गेट। ऐसा आ गया। अब ये जो मैक्सिमम डेविएशन है, ये एक्चुअली समझ लेना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, कितना, तो एंगल ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम। 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब होता है कि लाइट ग्रेस करके, टच करके वो अंदर जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। तो रे ऑफ लाइट जो है वो इट इज़ ग्रेजिंग इंसिडेंस, टच करके जाना मतलब दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना बनेगा 90। कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, इसको भूलना नहीं, इट इज़ 90। फिर यहाँ पे लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, एंड द अदर surface it bends away from normal and goes something like that, ऐसा कुछ रहेगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ 90 विच इज़ इन रेयर मीडियम। दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 विच इज़ इन डेंसर मीडियम। तो आपको याद है क्या, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दूँ लास्ट बेंच, डू यू नो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? लास्ट इससे पूछा वो बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बताएगा। दिस एंगल ऑफ एमरजेंस, दिस एंगल इज R2। now बताओ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? बताया था ना एक क्वेश्चन में मैंने, तो बताओ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, if we reverse the direction of the rays then the light follows the same path, exactly the same path, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो याद रखना, अगर मैं उल्टा इमेजिन करता हूँ तो रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया एंगल ऑफ, और ये कितना है 90 है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इतना लॉजिकली पता होना चाहिए कि यहाँ पे R1 इज क्रिटिकल एंगल। गुड, नहीं तो इक्वेशन डिराइव होने ही नहीं वाला। तो फॉर मैक्सिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, तो ये एंगल R1 है। मैं उल्टा इमेजिन करता हूँ तो बाहर का एंगल रिफ्रैक्शन हो गया जो 90 है विच इज़ इन रेयरर मीडियम, अंदर का एंगल क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है 90। देन यू नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। तो व्हाट इज R2? A माइनस R1, बट व्हाट इज R1? IC, तो A माइनस IC। फिर हम दूसरे सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द सेकेंड सरफेस। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द सेकेंड सरफेस, हम लोग मैक्सिमम डेविएशन की ही बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हो गया, हमने अभी डिराइव किया था। तो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ओनली विथ मैक्सिमम डेविएशन। ओके, तो याद रखना, इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द सेकेंड सरफेस, μ1 sin E इक्वल्स टू μ2 sin R2। μ1 की वैल्यू 1 sin E, μ2 की वैल्यू μ, और R2 क्या है A माइनस IC। तो μ हो गया sin E अपॉन साइन ऑफ A माइनस IC, A माइनस IC। ये है मैक्सिमम डेविएशन का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम डेविएशन। लेकिन इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता होगा फॉर क्रिटिकल एंगल, इफ यू रिमेंबर, साइन ऑफ IC इज 1/μ। था क्या ऐसा? था ना ऐसा? वेरी गुड। तो म्यू को लिख दो 1 sin IC। तो म्यू इक्वल्स टू 1 sin IC। इस इक्वेशन 1 से और इस इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 you get 1 sin IC equals to sin E upon sin of A minus IC, मतलब sin E equals to sin of A minus IC upon sin IC। तो ये भी फॉर्मूला है मैक्सिमम डेविएशन के लिए, और ये भी है।
आई प्रीफर रिमेंबरिंग दिस क्योंकि तो मिनिमम डेविएशन में म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू याद रखते हो, तो यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू याद रख लो साइन ई अपॉन साइन ऑफ ए माइनस आई सी, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डेविएशन। गुड। इसके बाद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वी हैव सीन थिन प्रिज्म, तो अब इसके बाद थिन प्रिज्म आएगा, पहले थिन प्रिज्म। तो इसके बाद हमने देखा था थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, तो इफ यू रिमेंबर एनी प्रिज्म विथ एंगल लेस देन 10 डिग्री उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थिन प्रिज्म। अ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री इज कॉल्ड एज थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म का इक्वेशन डिराइव करने के दो मेथड्स थे, दो में से हम एक की ही बात करेंगे। वी स्टार्ट विथ प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। ओके गुड। तो अगर एंगल स्मॉल हो, तो अगर आपको याद होगा फॉर स्मॉल एंगल साइन ऑफ थीटा इज थीटा, तो यहाँ से साइन साइन क्या कर देंगे, हटा देंगे फॉर स्मॉल एंगल्स। तो फॉर स्मॉल एंगल्स गुड। तो यहाँ से टू टू भी हो गया कैंसल, ए शिफ्ट कर लिया, तो म्यू ए इक्वल्स टू क्या आया, ए प्लस डेल्टा एम। तो म्यू ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और डेल्टा एम ये डेल्टा की बहुत सारी वैल्यूज़ में से एक वैल्यू है, तो डेल्टा एम को डेल्टा लिख देंगे, तो डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और रिमेंबर ये फॉर्मूला सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है। गुड। इसके बाद हमने देखा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द सेपरेशन ऑफ या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और उसमें से हमने सबसे पहला फॉर्मूला डिराइव किया था एंगुलर डिस्पर्शन का, एंगुलर डिस्पर्शन। तो मैं भी वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला, वो सब थ्योरी में हमने किया, इट इज़ जस्ट अ रिविजन, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, एंड एंगुलर डिस्पर्शन इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। तो जो एक्सट्रीम कलर्स है रेड एंड वॉयलेट, उन दोनों में जो एंगल है उसको क्या बोलते हो, एंगुलर डिस्पर्शन। डिनोट करते हैं डेल्टा से या फिर डेल्टा वी आर से, और ये होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो एंगुलर डिस्पर्शन का पहला फॉर्मूला मिल गया ये। फिर हमने अभी देखा डेल्टा इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वी विल बी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, एंड डेल्टा आर विल बी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ए सेम होता है हर कलर के लिए, एंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉन्स्टेंट फिक्स। गुड। अब ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे डिस्पर्शन के फॉर्मूला में, तो यू हैव म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा इक्वल्स टू ए कॉमन निकाल लिया, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यू हैव ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। इसके बाद हमने डिफाइन किया था मीन डेविएशन, और मैंने बोला था कि येलो कलर को हम लोग मीन कलर मान लेते हैं। तो मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन ऑफ मीन कलर विच इज़ येलो कलर। तो मीन डेविएशन आएगा तुम्हारा डेल्टा वाई इक्वल्स टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, या फिर अगर म्यू वाई नहीं दिया है, तुमको म्यू वी और म्यू आर दिया है, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। ओके। इसके बाद हमने डिफाइन किया था डिस्पर्सिव पावर। क्या देखा, डिस्पर्सिव पावर, द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू डिस्पर्स द लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, या फिर टू सेपरेट द वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। और या वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन था। मैथमेटिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। डिनोट करते हो ओमेगा से, इट इज़ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। गुड। अब ये ओमेगा जो है डेल्टा को मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख देता हूँ, और डेल्टा वाई लिख देता हूँ डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2, तो 2 आ गया यहाँ। और अदरवाइज
यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ओमेगा एस, ये जो डेल्टा था ये था म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई था म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। तो तुमको ओमेगा मिल जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी दोनों किसके फॉर्मूलाज हैं, डिस्पर्सिव पावर। इसके बाद एक टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में मतलब स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता, बट यू विल हैव टू नो इट हियर नाउ। एक्चुअली दो टॉपिक है लेकिन मैं इन कंपैरिजन पढ़ाने वाला हूँ। एक को बोलते हो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक को बोलते हो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में से हटा दिया, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जेई नीट में तो है ही। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन, मतलब वाइट लाइट इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो डिस्पर्शन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है विदाउट डेविएशन। दूसरा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये टॉपिक लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिक्स समझ में आ गया ना, तो ना फॉर्मूला तुम बोलोगे ना तुम दोनों में कंफ्यूज होगे। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन जब तुम बोलते हो तो दोनों में दो दो प्रिज्म इन्वॉल्व है, दो दो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज यू से डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन बिना डेविएशन के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रिज्म में लाइट जाएगा तो हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग एंगल से होगा, इसलिए जो एमर्जेंट रे है वो 7 कलर में स्प्लिट होगा। तो डिस्पर्शन हो रहा है ना, डिस्पर्शन हो रहा है ना, तो डेविएशन होने ही वाला है। फिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, उसका रीज़न है। सो लेट्स से कि मेरे पास 2 प्रिज्म है, तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ये पहला प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से क्योंकि यू मे गेट कन्फ्यूज हियर। ये पहला प्रिज्म, इसका प्रिज्म एंगल ए मान लेता हूँ। वाइट लाइट एंटर्स, और अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये वाइट लाइट सीधा जाता, लेकिन क्योंकि प्रिज्म है तो वाइट लाइट के पहले होंगे कंपोनेंट्स, रेड, then you have extreme color violet, and then you have yellow color as mean। हम 3 ही कलर की बात करते हैं, we talk only about 3 colors। अब अगर एक सिंगल प्रिज्म होता तो ये लाइट यहाँ जाता, ये लाइट यहाँ कहीं जाता और ये लाइट यहाँ कहीं जाता, मतलब हर एक कलर का डेविएशन हुआ। कोई भी कलर ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल नहीं गया, हर एक कलर डिस्पर्स हुआ मतलब डेविएट हुआ। यहाँ तक क्लियर? तो अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन? तो ये लोग क्या करते हैं और एक प्रिज्म यूज़ कर लेते हैं। तो यू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स हियर। ओके, दूसरा प्रिज्म क्या करता है? दूसरा प्रिज्म, देखो डिस्पर्शन हो रहा है मतलब फाइनली जो लाइट बाहर आएगा ना वो 7 कलर्स होगा, और 7 कलर्स होने के लिए डेविएशन होना ही चाहिए, नहीं तो 7 कलर वापस मिक्स हो गए और बन गया क्या? वाइट लाइट। तो विदाउट डेविएशन किसका डेविएशन नहीं हुआ? येलो का, मीन का डेविएशन नहीं हुआ। तो व्हेन दे से ना डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब वो तुमको ये बोल रहे हैं कि जो मीन कलर है उसका डेविएशन नहीं हुआ, वो ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल जा रहा है। तो रिमेंबर व्हेन दे से डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो किसका डेविएशन नहीं हुआ? येलो का। तो येलो लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। बाकी सारे कलर्स का डेविएशन होने ही वाला है, नहीं तो डिस्पर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सारे कलर सेम डायरेक्शन में जाए मतलब प्रिज्म ने कलर को स्प्लिट किया और सारे कलर वापस आके क्या हो गए? मिक्स हो गए, मतलब वापस से क्या बन गया? वाइट लाइट। तो फिर डिस्पर्शन भी नहीं होगा, नो डिस्पर्शन नो डेविएशन।
तो यहाँ पे जब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन बोलते हैं, किसका डेविएशन नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, येलो, राइट। और ये जो सेकंड प्रिज्म है इसका प्रिज्म एंगल ए डैश है, उल्टा लगाते हैं सब प्रिज्म, गुड। और हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेरी इजी, टू सिंपल, ए डैश अपॉन ए, ए डैश अपॉन ए, प्रिज्म एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म, किसका डेविएशन नहीं हुआ, येलो, बस। फिर ऐसे लिखना म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई माइनस वन, ऊपर ए डैश है ना, तो इधर नीचे म्यू डैश है, वेयर म्यू डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड प्रिज्म एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, बस दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, करेक्ट। और कई जगह पे बस एक साइन आगे माइनस लगा देते हैं, तो इवन इफ यू डोंट पुट माइनस तो तुमको मैग्नीट्यूड तो मिल ही जाएगा, तो माइनस आता है साथ में। अब दूसरा केस, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये भी नहीं हो सकता, डेविएशन हुआ लेकिन डिस्पर्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे व्हाई दे आर सेइंग दिस, चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ओके, गुड। यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रिज्म है, और यहाँ पे भी जब वाइट लाइट पहले प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा तो वाइट लाइट, गुड। चलो एक काम करता हूँ, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाता, स्ट्रेट। अगर प्रिज्म नहीं होता तो वाइट लाइट का डिस्पर्शन तो हुआ, क्योंकि प्रिज्म डिस्पर्स करने ही वाला है, येलो, देन यू हैव वायलेट, एंड देन यू हैव रेड, वायलेट एंड येलो। ओके, तीन कलर दिखाना सफिशेंट है। अब डिस्पर्शन हुआ, एक ही प्रिज्म होता तो जो लाइट था वो कौन सा होता, डिस्पर्स लाइट, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब दो प्रिज्म लगाने की वजह से, बिकॉज आई एम पुटिंग 2 प्रिज्म्स हियर, तो यहाँ पर 2 प्रिज्म लगा दिए, और जो सेकंड प्रिज्म है उसका एंगल ले लिया ए डैश, गुड। पहले प्रिज्म ने क्या किया, डिस्पर्शन, दूसरे ने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना मतलब सबको वापस से मर्ज करके सिंगल बीम बना देना। तो सेकेंड प्रिज्म ने उस डिस्पर्शन को नलीफाई कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो वाइट लाइट बन गया। लेकिन जो ये वाइट लाइट होगा कंबाइन होके, ये ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल नहीं जाएगा। तो डेविएशन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इस केस में भी ऐसा ही है, ए डैश अपॉन ए इक्वल टू माइनस, से भी याद रखना, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, बस इतना ही है। तो तुमको डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, इट इज़ जस्ट एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर फॉर्मूलाज, डू नॉट डिराइव, गुड। इसके बाद और एक टॉपिक है जो आपके स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता लेकिन हमको करना है, दैट इज़ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो यू मस्ट नो, when you can see near objects clearly but you cannot see far away objects clearly, इसको बोलते हो myopia, which is also known as short sightedness। तो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स का पास में, मतलब नियर ऑब्जेक्ट का क्लियरली दिखना, सिंपल। एंड देन यू हैव हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज कॉल्ड एज, क्या होता है ये, लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है और दूर का क्लियर दिखता है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग ऑफ कोर्स पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग विथ रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन दिस केस, इन मायोपिया, अ पर्सन कैन सी near objects clearly but cannot see far away objects clearly. So person can see near objects clearly but cannot see distant objects मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वहाँ पे उल्टा होता है, अ
पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट फार अवे, है ना? हाँ, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ओके, पक्का पक्का। अब पहले तो ये बताओ कि ये जो दोनों केस का प्रॉब्लम है ये ऐसा हुआ क्यों? मैंने बताया था आपको थ्योरी क्लासेस में, बताया था। आई हैव टोल्ड यू। हाँ, एक केस में इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, एक केस में इमेज रेटिना के बाद में बनता है। तो बताओ मेरे को, रेटिना के पास, चलो ठीक है, ये पहले तो मान लेता हूँ दिस इज आई बॉल, वाइट कलर का जो पार्ट होता है ना उसको आई बॉल बोलते हैं। और आई लेंस, बाकी कुछ एक दो वर्ड इन्वॉल्व है, आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी तो सॉरी, तो ठीक है, और रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये रेटिना है, यहाँ पे यू हैव योर आई लेंस, दिस इज आई लेंस, आँखों का तारा, मेरे आँखों का तारा हो तुम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक द बॉलीवुड मीनिंग ऑफ आँखों का तारा। बॉलीवुड में तो किसी को भी चांद बना देते हैं और चांद तारे तोड़ लाओ भी बोल देते हैं। गुड, चांद तारे टूट नहीं सकते, तुम वहाँ तक पहुँचोगे उससे पहले तुम मेल्ट हो जाओगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर। मेल्ट मतलब गए, राख भी नहीं बचेगी। गुड, चलो ध्यान दो आप। इन केस ऑफ मायोपिया में जो फोकस होता है ना, फोकस रेस का, वो रेटिना से पहले ही हो जाता है, होना चाहिए था रेटिना पे। सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई विदाउट डिफेक्ट्स द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, लेकिन इधर पहले ही हो गया इन केस ऑफ मायोपिया। इसके लिए ये समझेगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे तुमको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्केव लेंस, डाइवर्ज करके तुमको यहाँ पे लाना पड़ेगा रेस को। तो जिनको भी नेगेटिव नंबर का चश्मा है वो सबको यही प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन है तो यही। एंड इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, in this case the rays they basically come to focus behind retina. गुड, अब सॉल्यूशन तो देखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों वो सोचो पहले, ऐसा क्यों हुआ? फोकस होना चाहिए था रेटिना पे, उससे पहले हुआ। तो हमारे आँखों में नेचुरली एक लेंस है, आई लेंस, दैट इज़ नेचुरल लेंस। अगर उस लेंस का फोकल लेंथ कम हो जाए तो फोकस पॉइंट पास में आएगा ना। तो याद रखना, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज रिड्यूस्ड, कम हो गया, वो फोकल लेंथ कम हो गया, इसके लिए पहले ही फोकस हो गया। और वहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस has increased. ओके, अगर फोकल लेंथ कम हुआ तो पावर क्या हो गया? बढ़ गया। तो पावर हैज़ इंक्रीज्ड, तुम्हारे आँखों का पावर बढ़ गया अगर ऐसा है तो, और यहाँ पे डिक्रीज्ड, पावर हैज़ डिक्रीज्ड। गुड, तो करेक्शन के लिए यहाँ पे तुम यूज़ करोगे कॉन्वेक्स, गलत बोल रहे हो, कॉनकेव, और वहाँ पे कॉन्वेक्स। वेरी गुड। अभी मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दैट थिंग ओवर हियर। सिर्फ मैं लिख दूंगा कि फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, करेक्टेड फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभार, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। वंस इन अ वाइल दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू पुट नाउ। तो इस केस में क्या ये शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब पास का
क्लियर दिखता है. सो पर्सन कैन सी अप टू अ डिस्टेंस x but wants to see up to a distance y where y is greater than x. So the focal length should be in this case xy upon y minus x. ऐसा कुछ आता है वो. लेट मी जस्ट वेरीफाई. करेक्ट. सिर्फ x माइनस वाई दिया है, मैंने y माइनस एक्स लिखा है. उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि मैं करेक्शन के लिए क्या यूज़ करूँगा, कॉनकेव. तो ठीक है, x माइनस वाई फाइन. तो जो लेंस तुम यूज़ करोगे करेक्शन के लिए दैट शुड हैव दिस फोकल लेंथ. तो यू कैन सी अप टू x बट यू वांट टू सी अप टू y. और उधर उल्टा होता है. हाँ, उल्टा होता है ना. अ पर्सन कैन सी अप टू लार्ज डिस्टेंस x बट कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स. मतलब y डिस्टेंस देखना है, वो देख नहीं पा रहा है, तो y इज लेस देन x. तो यहाँ पे आएगा f इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. सेम है सेम. यहाँ पर डिनोमिनेटर विल बिकम नेगेटिव. यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. तो फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही है, डजंट मैटर. ओके, तो फॉर्मूला सेम ही है. सिर्फ मैंने बोला ना तुमको खुद को सोचना पड़ेगा. वहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करोगे, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स यूज़ करोगे तो डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव. कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए x ग्रेटर देन y मतलब ये पॉजिटिव है और ये कौन है, नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव. गुड. तो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप. इट इज़ जस्ट अ क्विक रिवीजन. सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव करके देखेंगे एंड डन. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकली फॉर रिवीजन. तो कल से वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस. सिंपल माइक्रोस्कोप. नंबर 1, द apparent size of any object depends on the angle it subtends on your eye. तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखता है वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट ने हमारे आँखों पे कितना एंगल बनाया. apparent size of an object depends on the angle it subtends on our eye. So to see an object clearly, the distance between the object and the eye must be reduced. But there's a limit to which an object can be brought close to our eye, right? जिसको हम बोलते हैं distance of distinct vision, below which the eyes are strained and the object appears blurred. तो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई ये जो डिस्टेंस है बिलो विच यू कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट इज़ 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर तक अगर हम लाए, मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक लाए, तो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ. तो लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, सम ऑब्जेक्ट हियर ए बी, और ये रखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जितने डिस्टेंस पे, और इसने जो एंगल सबटेंड किया आई पे दैट इज़ बेसिकली लेट अस से अल्फ़ा. इतने डिस्टेंस पे लाने के बाद भी हमको जितना डिटेल में ऑब्जेक्ट को देखना था हमको नहीं दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, तो हम एक लेंस यूज़ करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में एक लेंस को रख देंगे. कौन सा लेंस को रख देंगे, कॉन्वेक्स. such that जल्दी बताओ, such that the object is between optic center and focus. क्योंकि when the object is between optic center and focus, the image formed is virtual, erect and magnified. तो रिमेंबर 25 सेंटीमीटर तक लाने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ. जितना डिटेल में हमको ऑब्जेक्ट देखना था उतना नहीं दिख रहा है. तो इसका सॉल्यूशन है दैट यू यूज़ अ लेंस एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस. सो द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, erect and magnified. A convex lens used in this manner is called as
सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप होता है अंडर अ कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में हो, अदरवाइज नॉट। मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रख दिया तो इस लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं बोल सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन अंडर कंडीशन दैट द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस v। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, अच्छा बाय द वे ये हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं इसको। तो जो इमेज है, इमेज वो जो आई पे एंगल सबटेंड करेगा उसको कुछ नाम दे देंगे बीटा। अब ये बीटा है तो ये भी क्या है, बीटा है, वर्टिकली अपोजिट। सो मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। एड मतलब हेल्प, किसका हेल्प, लेंस का। यहाँ पे हमने लेंस का हेल्प लिया क्या, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye, but when the object is kept at DDV, तो बीटा बाय अल्फा। एंड यू कैन नाउ फाइंड आउट अल्फा। पहले बताओ tan अल्फा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ए बी बाई डी। लेकिन अगर अल्फा स्मॉल हुआ तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी अल्फा। सो देयरफॉर यू गेट tan अल्फा इक्वल टू ए बी बाई डी, इक्वेशन नंबर 2। Similarly you have tan beta। What is tan beta? दो फॉर्मूला बनेंगे क्योंकि ये बीटा दो ट्राइंगल में कॉमन है, ए बी ओ A1 B1 O। तो ए बी अपॉन बी ओ इज यू, तो ए बी अपॉन यू या फिर A1 B1 अपॉन B1 O विच इज B। इफ बीटा इज स्मॉल, tan beta is approximately equal to beta, so therefore you have beta equals to AB by U। मैं A1 B1 नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग AB। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3, तो 2 और 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, 1 to 3, what is magnifying power, beta by alpha। what is beta? ए बी बाई यू, अल्फा ए बी बाई डी, ए बी तो यू बाई डी, डी बाई मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू डी बाई यू। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे बेसिक फार्मूला है। अब ये कब यूज़ करना, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तब ये यूज़ करना। DDP की वैल्यू तो पता ही होती है 25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है तो मैंने बोला था और तुम बताओगे, द वन हु इज हैविंग यूजिंग ऑफ कोर्स हैविंग मायोपिया एंड यूजिंग अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर नियरली -1.5, नियरली उसके आसपास, नियरली बोला ना मैंने, ज़्यादा फर्क नहीं है। गुड। तो मुझे बताओ व्हाट इज 1/f, माइनस की प्लस की माइनस, तो फाइनल क्या हुआ, माइनस। प्लस कब यूज़ करते हैं, नहीं जिससे पूछा बोलेगा तुम्हारा भी नंबर आएगा, मेरा। तो 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f मल्टीप्लाई बाई डी, क्योंकि मुझे डी बाई यू चाहिए था। तो डी बाई यू इक्वल्स टू डी बाई वी माइनस डी बाई एफ। मैंने क्या बोला था कि ऑप्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के बिना यूज़ नहीं करना, राइट। और जो फाइंड करना उसके साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हमको कुछ फाइंड नहीं करना है, जनरल इक्वेशन बना रहे हैं तो सबके लिए ही कन्वेंशन यूज़ होंगे। तो सबके लिए यूज़ होंगे तो वापस द सेम पर्सन। मुझे बताओ, तुम ही बताओ, डी पॉजिटिव के नेगेटिव,
टेल मी बिफोर आई स्लीप, बताओ। पॉजिटिव? गलत है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि पॉजिटिव नहीं था इसलिए नेगेटिव। गुड, नेगेटिव क्योंकि ये डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है। क्योंकि पॉजिटिव नहीं है इसलिए नेगेटिव, ऐसा नहीं है। और u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। क्यों v नेगेटिव है? यहाँ पे इमेज सेम साइड पे बना, क्या बना? हाँ, तो ये नोटेशन मेरे समझ में तुमको नहीं आएंगे इसलिए नोटेशन चेंज कर देता हूँ। d नेगेटिव, u नेगेटिव, v नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो होता है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव। देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर जो d/u था वो बन गया d/v प्लस d/f, इक्वेशन 5। दिस इज अनदर general equation of magnifying power of a simple microscope। पर्टिकुलर पे अब भी आएंगे, वो तो स्पेशल केस बनेगा। तो स्पेशल केस, दो स्पेशल केसेस हैं। नंबर 1, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, क्योंकि DDV से कम डिस्टेंस पे इमेज बन के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ब्लरिंग का ही होने वाला है। हमने एट द फर्स्ट प्लेस लेंस यूज ही इसलिए किया था क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते। तो अगर इमेज भी 25 से कम पे बनेगा तो देयर इज़ नो यूज़, एब्सोल्युटली नो यूज़। इसके लिए दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस वेयर इमेज कैन बी फॉर्म, तो V = D। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV इज D/D, मतलब 1 प्लस D/f। एंड द सेकेंड केस इज if image is formed at infinity, if image is formed at infinity, when image is formed at infinity, that is V = infinity, and when V is equals to infinity, magnifying power will be just D/f। in either case you see that कि मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन इनवर्स है। तो अगर एक सिंगल लेंस यूज़ करके भी हमको जितना मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, जितना मैग्नीफिकेशन चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। फोकल लेंथ कम करने का मतलब होता है थिकनेस ऑफ द लेंस को बढ़ाना। लेंस के थिकनेस को बढ़ाने जाओगे तो क्रोमेटिक एबरेशन आ जाएगा, मतलब बेसिकली साइज़ तो बढ़ गया, इमेज का क्वालिटी ख़राब हो गया। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट डू दैट। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक की जगह पे दो लेंस यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव विच हैज़ स्मॉलर फोकल लेंथ एंड स्मॉलर एपर्चर एंड विच इज़ प्लेस्ड नियर टू द ऑब्जेक्ट। द अदर वन इज़ कॉल्ड एज आईपीस which has larger aperture and larger focal length। तो एक लेंस है स्मॉलर एपर्चर, स्मॉलर फोकल लेंथ, दूसरा है लार्जर एपर्चर, लार्जर फोकल लेंथ, ऐसा है। एंड दे हैव दिस कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस। द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड क्लोज टू द लेंस विच इज प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है UO। और इस केस में हम जानबूझ के इसको फोकस के बियॉन्ड रखते हैं, क्योंकि अगर तुमने फोकस के बीच में रख दिया है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और वर्चुअल इमेज मतलब सेम साइड पे। अगर उसी साइड पे इमेज बन गया तो आई पीस के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप देख किसको रहे हो? तो रिमेंबर यहाँ पे इट इज़ एसेंशियल दैट द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव। तो इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो इमेज बन जाएगा यहाँ पे रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड
लेट अस से A1 B1, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और हम इंटेंशनली इस इमेज को आई पीस के ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट करते हैं, सो दैट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअली इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो A1 B1 इज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज A2 B2। तो फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया दैट इज बीटा, और ये भी आ गया बीटा, तो यहाँ से तुम देख रहे हो। गुड, पक्का पक्का। एंड दिस इज बेसिकली इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। तो ये है उसका कंप्लीट रे डायग्राम। देन इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन फिर वही है, सिर्फ चेंज यहाँ पे ये है, इट इज़ अ रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, क्योंकि यहाँ दो इमेज बनती है, ऑब्जेक्टिव बना था एक, आई पीस। तो फाइनल किसने बनाया? आई पीस। तो एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट DDV, इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे tan बीटा दो बनते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम यू सी, A1 B1 अपॉन UE और A2 B2 अपॉन VE। तो A1 B1 अपॉन UE और A2 B2 अपॉन VE। तो बीटा अगर स्मॉल है, if beta is small, tan beta is approximately equal to beta, so therefore you have beta equals to A1 B1 upon UE equals to A2 B2 upon VE, equation number 2. Good. Then of course tan alpha तो जो था वही है, तो tan alpha मतलब अल्फा मतलब AB by D, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 और 2 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3 क्या आएगा जल्दी बताओ? मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा हम लोग यूज़ करेंगे A1 B1 बाई UE, A1 B1 बाई UE बड़बड़ मत करो, अपॉन AB बाई D। तो A1 B1 अपॉन AB D बाई UE। A1 B1 is the image size obtained by objective, formed by objective, and AB is object. Image size upon object size is magnification of objective, and D by U होता है magnifying power of eyepiece। तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। एक बार पढ़ा ना टॉपिक तो पूरा याद होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर, नहीं तो कोई यूज़ नहीं है, मतलब यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये होता है माइनस VO बाय UO, क्योंकि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन विथ माइनस साइन। और वो जो D बाई UE था ना, D बाई UE वो हमने लिखा था D बाई V प्लस D बाई F, लेकिन किसका? E और E। और इसमें भी दो स्पेशल केसेस वही बनने वाले हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, तो इफ V इक्वल टू D, कौन सा V? VE, तो यू गेट मैग्नीफाइंग पावर एट DDV इक्वल्स टू माइनस VO बाई UO, या देखिए 1 प्लस D बाई FE। और फिर मैंने तुमको एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला बताया था, FO अपॉन FO माइनस UO, इसको लिखते हैं ऐसा, VO बाई UO को, FO अपॉन FO माइनस UO। वो अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, तो आई स्किप दैट पार्ट। देन नंबर 2, if the final image is formed at infinity, so the magnifying power of compound microscope will be minus VO by UO into D by FE। Lastly, length of microscope या फिर ट्यूब लेंथ, वो होता है distance between the objective and eyepiece, and if you look at the diagram it is VO plus UE, mod of VO plus mod of UE। गुड। और जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था दैट वाज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप
हमको सिर्फ बेसिक थ्योरी है टेलीस्कोप का, ओनली बेसिक। टेलीस्कोप्स आर ऑफ मेनी टाइप, कैसाग्रेडियन, न्यूटोनियन, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप। हमको रिफ्रैक्टिंग टाइप ही है विथ 2 लेंसेज। रिफ्लेक्टिंग टाइप में मिरर होते हैं, मिरर। यहाँ पे हम लोग मिरर यूज़ किए थे क्या? नहीं। तो हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप। उसमें भी 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है, आईपीस का फोकल लेंथ और उसका एपर्चर छोटा होता है। तो रिमेंबर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैज़ अ लार्जर एपर्चर एंड लार्जर फोकल लेंथ एंड आईपीस हैज़ स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। एंड लेट्स से दिस इज द कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस। गुड। टेलीस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे, जिसको तुम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हो। क्या बोलते हो? और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का ऑप्टिक्स में एक स्पेसिफिक मतलब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो हम टेलीस्कोप वैसे भी देखेंगे प्लैनेट्स को या स्टार्स को देखने के लिए, करेक्ट? तो वो दूरी है, तो रेज आर पैरेलल, मे नॉट बी पैराक्सियल बट पैरेलल। तो जो रेज आ रहे हैं दे आर बेसिकली पैरेलल बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट? और ये बनाएंगे इमेज। तो यहाँ पे ए बी इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, ए बी इज़ द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था प्रैक्टिकली, तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। एंड ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। दिस इज द एंगल सबटेंडेड। किसने सबटेंड किया एंगल? किसने? ऑब्जेक्ट ने। किस पे? ह्यूमन आई। आप बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे है। ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि ऑब्जेक्टिव लेंस पे और ह्यूमन आई पे एंगल सेम बनता है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज फार 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 अवे। गुड। और ये जो ए बी है विच इज़ द इमेज obtained by objective या formed by objective becomes object for eyepiece। और हम intentionally यहाँ पे इसको भी फोकल प्लेन में रखते हैं आईपीस के, जानबूझ के, क्योंकि इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नियर टू फोकल लेंथ रखते हैं, नॉट एग्जैक्टली फोकल लेंथ। तो अगर ऐसा हुआ, इफ दैट इज़ द केस, तो रिमेंबर द इमेज फॉर्म्ड will be at infinity. Good. And this is the angle subtended by the final image at human eye, क्योंकि हम वहाँ से देखेंगे ये बीटा है तो ये भी क्या है? बीटा है। ये अल्फा है तो ये भी क्या है? अल्फा है। तो यहाँ पे भी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर सिमिलर वे से डिफाइन करते हैं, बीटा बाय अल्फा। फिर tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, एंगल अगर स्मॉल होगा तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज ए बी, एडजेसेंट इज एफ ओ, इक्वेशन 2। एंड tan बीटा इक्वल्स टू बीटा विच इज अपोजिट साइड विच इज ए बी अपॉन एफ ई, इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, बताओ व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? ए बी बाय एफ ई अपॉन ए बी बाय एफ ओ। तो फिर आ जाएगा एफ ओ बाय एफ ई। सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं माइनस साइन, बिकॉज द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट उल्टा दिखता है, यहाँ पे इमेज उल्टा बनता है। और फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के जैसा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, सेम ही है, वी ओ प्लस यू ई। सिर्फ यहाँ पे वी ओ एफ ओ है और यू ई एफ ई है, तो ये आ गया लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। गुड। सो विद दिस वी हैव completed full revision of optics. So we'll start with questions from tomorrow.